Hello everybody, welcome to Math Made Easy by Planet Spark. I am Nidhi and I am back with the next video for my 9th graders everybody. I welcome you all in the new session 2026-27. Last video में हमने बात की of the most common 5 mistakes that you make when you transit from grade 8 to grade 9. If you have missed the video, go back to the channel and check the previous video. आज हम बात करेंगे एवरीथिंग यू मस्ट नो बिफोर क्लास 9. ये प्रिपेयर्डनेस लेके चलेंगे. सेशन इज स्टार्टिंग. फर्स्ट मंथ में वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि थ्रू आउट द ईयर हम क्या करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी. First of all, before school starts, you must know all these things everybody. New class है, new pressure होगा, new expectations होंगी. उनका burden नहीं लेना है. We have to do everything nicely and calmly. But if you know these things everybody, the classes will become much easier for you. Grade 9 हो जाएगा easy, right? So let's get started everyone. First thing, why class 9 is a big jump? Why is there so much about getting into grade 9? 6 से 7 में, 7 से 8 में transit होना was not that big of a deal. जितना कि 9th grade में आना है. Why? Because 9th के बाद 10th है, then 11th है, then 12th है, right? So these 4 classes are very important and this is just the beginning. So why is that happening everybody? Let's understand that. Syllabus gets deeper. That is, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं है कि वी जस्ट नो अबाउट इट, लर्न द फॉर्मूला, अप्लाई इट. कॉन्सेप्ट्स विल बी डीपर. अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी फ्रॉम नाउ ऑन. सारा खेल है अंडरस्टैंडिंग का. हाउ वेल, हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट विल डिसाइड कि चीज़ें कितनी ईजी या कितनी डिफ़िकल्ट लगेंगी. देन concepts get more connected. पहले क्या होता था? Let's say I don't know these two topics, so that's fine. बाकी chapters के question I can do in the exam. Sorted, right? लेकिन from 9th grade onwards, 10th, 11th and 12th topics होंगी connected. Algebra और geometry दोनों आते हैं, then only you can solve the questions, right? एक chapter का concept use हो रहा है दूसरे chapter में, so everything is interlinked. So you should know everything. कुछ skip नहीं कर सकते, otherwise a lot other things will not be able to do. Then teachers expect more self-study. Very important factor everybody. Teacher can help you up to a level. कि समझा दिया, basics बता दिए, practice आपको करनी है. किस लेवल तक समझ आ रहा है एंड हाउ मच सेल्फ स्टडी यू नीड, यू हैव टू डिसाइड दैट कि मेरा एक बारी में हो पा रहा है या मुझे 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, राइट एवरीबॉडी. सो सेल्फ स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास वर्क और होमवर्क से काम नहीं चलेगा कि क्लास में एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस किए, होमवर्क दिया है मैम ने टू डू द रेस्ट 5 क्वेश्चंस एंड वी आर डन. नो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. एग्जाम्पल्स पे वर्क करो, सिमिलर क्वेश्चंस पे वर्क करो, डू ऑल द क्वेश्चंस अगेन. Okay, next one, exam test the understanding, not just the memory. पहले की तरह अब memory का test नहीं है, understanding का test है. That is, questions will be molded to check your logical thinking. इस type का question किया है तो related type का question होगा, not the same कि just numbers change कर दिए. That will not happen grade 9 onwards everybody. And this is the foundation for class 10 and beyond. That's why grade 9 is a big deal. बिकॉज यहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है ऑफ ऑल दीज क्लासेस कमिंग अप. 10th बोर्ड है, 11th में वी हैव टू डिसाइड कि मेडिकल में जाएंगे, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, व्हाट आर वी गोना डू देयर, राइट? सो एवरीथिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट वन एवरीबॉडी, योर कोर क्लास 9 CBSE सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स में क्या चेंज होगा, क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? लेट्स सी. मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये तो है ही. Languages are also there, English, Hindi, and internal subjects. You might be having computer science there, physical science there, etc. Right? So सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना भी इम्पॉर्टेंट है. कि कैसे बैलेंस करेंगे? मैथ्स एंड साइंस को ज़्यादा टाइम चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स को कम, तो कितना ज़्यादा कितना कम? हाउ मेनी टाइम्स अ वीक आर वी गोइंग टू रिवाइज दिस? हाउ मेनी टाइम्स अ वीक आर वी गोइंग टू रिवाइज this, right? Not just the homework, practice also of all the subjects is important everybody. तो एक ऐसा schedule बनाएंगे that is practical and that can actually be followed. So we'll talk about that also in upcoming video. Okay, next one, class 9 is more about system than IQ, right?
सिर्फ स्मार्ट होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हार्ड वर्किंग होने से काम नहीं चलेगा कि सारा सिलेबस 4 बार कर दिया तो वी नो एवरीथिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, वी आर स्टक। इफ यू आर जस्ट स्मार्ट एंड यू हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस देन ऑल्सो यू विल बी स्टक। तो सिस्टम एक मेंटेन करके चलना है हमें। दैट मीन्स हाई स्कोरर बनने के लिए वी हैव टू रिवाइज अर्ली। जस्ट लाइक वी टॉक्ड इन द प्रीवियस वीडियो एवरीबॉडी, 2 days के बाद टेक द सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड देखो कितना याद है। रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन आई एम सेइंग। देन स्टे रेगुलर, अगेन कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। लास्ट में 2 दिन बैठ के 2 महीना बैठ के सारा पढ़ लोगे, इट विल नॉट वर्क। पूरा साल कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अवॉइड बैकलॉग, चीज़ें बिल्डअप नहीं होने देनी है। यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये नहीं सोचना एक चैप्टर बीच में छूट गया चलो ये बाद में कर लेंगे, बाकी सिलेबस साथ साथ कर लेते हैं। नो, अब उस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी चैप्टर आएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, राइट, वो कॉन्सेप्ट जहाँ भी यूज होगा देन यू लैक देयर। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट वन कॉन्सेप्ट। तो बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखना है। ओके, एंड प्रैक्टिस राइटिंग, सॉल्यूशंस लिखने की, आंसर्स लिखने की, द स्टाइल इन द वे वी आर प्रेजेंटिंग इट, इसकी प्रैक्टिस अगेन बहुत ज़रूरी है। सो क्लास 9 में इनकंसिस्टेंसी विल, क्लास 9 punishes inconsistency everybody, not low intelligence. Okay, बैलेंस रखना है दोनों चीज़ों का, द स्मार्टर यू आर एंड द प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट, द 5 बिगेस्ट चेंजेस फ्रॉम क्लास 8। क्या बिग चेंजेस हैं अगर हम इनकी बात करें, देन वी कैन से क्लास 8 में एक बार पढ़ के चीज़ें समझ आ जाती, राइट, इजी थिंग्स वर देयर कि ये 2 फॉर्मूला है, इन पे बेस्ड ही दीज एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस आर देयर, सो वी कैन डू दैट। बट क्लास 9 में ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, बिकॉज अगेन द रीज़न इज अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी यहाँ पे। सो वी कैन से कॉन्सेप्ट लेस डायरेक्ट होंगे, डायरेक्टली कुछ भी नहीं है कि ये फॉर्मूला है, ये एप्लीकेशन है, समझनी पड़ेंगी चीज़ें। मोर एप्लीकेशन बेस्ड एंड रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स बिकम प्रैक्टिस हैवी, दैट इज प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, बस इतना ही चाहिए। साइंस बिकम्स मोर थ्योरी प्लस लॉजिक बेस्ड, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी यू विल बी रीडिंग डिफरेंट सेट ऑफ values there, right, different set of skills there we can say. So not just math, हर सब्जेक्ट में बेसिक चेंजेस आएंगे एवरीबॉडी, एंड यू हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल थिंकर। ओके, चलिए, नाउ बिफोर क्लास 9 मैथ स्टार्ट्स, नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स। अगर हम टॉपिक्स की भी बात करें मैथ्स में, तो क्या चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए फ्रॉम ग्रेड 8। देखो, ग्रेड 8 से फ्रैक्शंस पक्के कर लो, इंटीजर्स, लीनियर इक्वेशंस, एक्सपोनेंट्स एंड बेसिक ज्योमेट्री, बिकॉज क्लास 9 में इन पे हम बिल्ड करने वाले हैं। सो इफ़ वी आर वीक एट एनी ऑफ इट, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिकॉज इन क्लास 9 विल टॉक मोर अबाउट, वी नीड मोर लॉजिक, द स्टेप्स टू बी फॉलोड, एक्यूरेसी एंड रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, लॉजिकली सोचेंगे हाउ वी आर टैकलिंग अ प्रॉब्लम, क्या स्टेप्स होंगे इसके, एंड हर स्टेप का रीज़न क्या है, दिस इज द स्टेप बिकॉज दिस हैपेंड, प्रॉपर रीजनिंग, accuracy should be there. Okay, and then regular practice, again very important. Then other important points everybody, first of all NCERT is your base, not optional. कोई और publication आप use कर रहे हो, just like maybe it's there in your school and usually you do that, this is a good book and not, no, NCERT करनी ही करनी पड़ेगी, because NCERT का सिलेबस भी builds onto its previous one. तो ग्रेड 10 में you can see a few references from grade 9 NCERT. तो अगर वो नहीं की है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन, those particular questions, example case studies नहीं किए हैं, then it will become problematic in the upcoming classes. So अगर कोई और बुक फॉलो कर रहे हो, साथ साथ करो, but NCERT अब ऑप्शनल नहीं है. Okay, you have to do NCERT there. Then create a simple daily routine that actually works, and we'll talk about this in another video in detail everybody. So you also come up with a schedule and we'll discuss it. Okay, then your first month strategy is very important कि first month में हम कैसे चीज़ें tackle करेंगे,
maybe new school, new environment, new class, new expectations, a lot of new things are there. You want to enjoy it as well as you want to don't fall back, right? So think of it, what is the strategy that it can be that will work for you? It will be unique for you. सोच के चलो, this is how the beginning would be. And consistency, always keep that in mind. Avoid the mistakes we discussed in the previous video. Last video में 5 common mistakes discuss की थी. Try to avoid that. How to fix that? That also we have discussed in the video, everybody. So if you have missed it, go back and check it. और इसके बाद whatever you want to know except for the timetable, you can tell me in the comments and we will discuss that the next time. So that was all, everybody. I wish you all the best and thank you.